friends, welcome to my channel and also welcome to Delhi Agra Jaipur vlog series part 2। जैसे कि पार्ट 1 में ज़्यादातर ट्रैवलिंग ही था और बिरला टेम्पल और कुछ जगह मैंने आपको दिखाई थी, पर यहाँ पर हम जंतर मंतर आ गए थे। तो चलिए जानते हैं कुछ जंतर मंतर के बारे में कुछ जानकारी जो कि वर्ल्ड फेमस है। Right? This is made later, the last one, 1728. So it's a model of jewelry and the instrument function now also. Before making instruments, Maharaja Savai Jai Singh II had made a map of Jaipur sky. Sir, I'm using a word, Jaipur sky. Jaipur sky means when we stand in Jaipur city from here, how many planets, zodiac sign and constellation we can see. He mentioned their longitude and latitude position and name also. You watching this one, this is the map of Jaipur sky. That whole is Jaipur. So when you stand here in Jaipur city, you can see this whole. Can you see some names are there? Many names are there. Okay, these are the 6 minutes. You know why? Because our India's time is not from Jaipur, it's from Prayagraj, Allahabad. Because the center of India that is Prayagraj. So everywhere we watching time in our watches, this is time from Prayagraj. How we will see the time here in this instrument? Each line is 1 hour. Watching here, in the end of the lines, numbers are there. So each line is 1 hour. Gap of these two lines 1 hour. You can see from here, this line for 10 o'clock. You know number is here 10. Next line 11. So gap of these two lines 1 hour. Right? There are three equal parts, 30, 30. Right? This is 5 minutes. It's 12 minutes. In the middle of this is, instrument you watching the iron rod. The rod shadow. So almost shadow is coming here. So it's maybe 12, 5, maybe 9, 12, 9 and plus 26. So maybe 35, 12, 35. Take your watch. That's only 6 months we can see time here. Because up to 6 months sun remains on northern hemisphere. When sun on southern hemisphere sending back side. So another 6 months we can see time back side. Okay? Then 12 months and our sun moves 1 month on one zodiac sign. So with help of this we can find the correct position of zodiac sign. You know how? You watching this thing? Put there. Can you show me the side of the ring? If you will see carefully down the side of something is writing there. That is the name of zodiac sign, and over there is written there Aries. When a child will born these days, his sun sign will be Aries. Only 1 hour we can make calculation. ये जो मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग के जो सीरीज़ है ना, वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में है। जो कि जंतर मंतर हम आए थे जयपुर में, महाराजा सवाई जय सिंह दूसरे ने वो एस्ट्रोनॉमिकल हिसाब से ही बनाया था, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस पर जो भी था वो एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड था। Sir, yes sir. This is a 35, this is 33, this is 24, 760 degrees within 24 hours. When it rotates itself within 24 hours. 1724 में ये इसलिए बनाया गया था जिससे वो टाइम डेट और जो कि सन मून का और अदर जो बाकी जो प्लैनेट्स है उनका जो मोमेंट वो सभी इसी कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बनाया था ना एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड, इन्हीं सब चीज़ों से वो पता लगाते थे। Their Makar Lagna Rashi Valai. So sir, you know these lines, they are position, they are showing the position of Lagna. Now you are watching the ring. And in the on this line, it's in there Dhanu Lagna Rashi Valai. So now at present Lagna is Sagittarius. What was the zodiac sign? Aries. So same time Lagna and zodiac sign will be different. Only within 24 hours, 2 hours. This line have 7 number everywhere. Okay? Now you are watching that pipe. The whole shadow is standing here. You came under my hand. Can you show me? You are standing here. So this is 65, so 70, 71, 72. 72 degrees, that is the correct altitude of sun on Jaipur. Angle. The maximum altitude should be 90 degrees. But it is not possible to be 90 degrees here. Because Jaipur not on equator. Jaipur from equator is in north on latitude 27 degrees. So this one, you know, before 20 years, tourists permitted there. They can see nice view also, but you know, unfortunately, somebody fell down from there. That's why nobody permitted there. You know what is that? This one and this one. You know, this one, temple. Okay? So in Jantar Mantar, everywhere the same instruments, but in Delhi they are combined. Here they make separately. हमारे घर में यही कह रहे थे कि पहले तो सभी जगह जाना अलाउड था, पर अब वैसा नहीं है। सिर्फ हम कुछ ही जगह जा सकते हैं
क्योंकि मॉन्यूमेंट्स के सेफ्टी की वजह से। और वहाँ से हम उसी के पास ना सिटी पैलेस था, जो कि जयपुर का फेमस पैलेस है। सो हम वहाँ पर गए थे। वहीं की कुछ क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पर भी ऐड की है, पर अंदर का जो एरिया था ना, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो मैंने नहीं किया है। सिर्फ बाहर की क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पर ऐड की है। which is 3 times. You know, in India we have 3 kind of palaces. Some palaces under Archaeological Survey of India (ASI). Some palaces under Tourism Department of state governments. And this is private palace under trust. You know, Tirupati temple, many temples also, Shirdi temples, these are under trust. So this is also under trust. Revenue from this palace goes to royal family. Maintenance also by royal family, and the rules also by royal family. इस पैलेस में महारानी पद्मिनी और उनके फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर अभी भी रहते हैं, और वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो हमने बचपन से पढ़ा था और जो हमने सुना था। जब वहाँ पर जाके हमने महसूस किया ना, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। Here you know who's sitting on chair? She's a Rajmata of Jaipur, Maharani Padmini Devi, right? Her daughter, Princess of Jaipur, Princess Diya Kumari. She is now MP, BJP government. She is daughter of Princess Gauravi Kumari, and both of these are the son of Princess. He is the king of Jaipur, Maharaja Savai Padmanabh Singh. He is the king of Sirmaur. पता नहीं ये सारी हिस्ट्री बाद में रहेगी कि नहीं रहेगी, तो मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ कैप्चर कर सकूं, और जो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो देखते हैं मुझे, उनसे भी मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, पर जो मैंने सुना था, पढ़ा था, और जो हमारे कुछ गाइड ने हमें बताया था, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। कुछ गलतियाँ भी हो सकती, क्योंकि डिटेल में तो मुझे भी सब कुछ तो पता नहीं है हर एक जगह के बारे में। जब हम टूर पे जाते हैं ना, तो हर पैलेस की एंट्री फीस भी होती है। यहाँ पर भी वो उनका रेसिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पर भी एंट्री फीस थी, जो कि वो अमाउंट वो पैलेस के मेंटेनेंस में यूज़ करते, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। ज़्यादा नहीं था, बस 100-150 कुछ इस तरह से सभी पैलेस की एंट्री फीस रहती है। रानी पद्मिनी अभी भी यहीं पर रहती है उनके फैमिली के साथ, और उनकी जो प्रिंसेस है दिया कुमारी, वो यहाँ के म्यूज़ियम की ट्रस्टी भी हैं, और यहाँ के पैलेस स्कूल और महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल भी, जो कि जयपुर में है, वो चलाती हैं। अब जो हमारे गाइड जो हमें कह रहे थे, वो आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है यहाँ की। Sun dynasty. You watching here, both sides of you, these are guns. The shape they make like sun, because you know these kings belong to Sun dynasty, Suryavanshi. You know, sir, these one side, these guns are very ancient guns. Especially near the barrel. Just come close here. You know, this is the barrel of the gun. Here the barrel of the gun is there. With the help of this stick, they fill gunpowder. Then they keep bullet and then they fire. Okay, initial guns. Yeah. So this is symbol of royal dynasty, Suryavanshi. At the royal time, this hall was private meeting hall, and there is a very special thing which is recorded in the book of 24. जो गार्ड आपको दिख रहे हैं ना, पीछे वाले जो बर्तन हैं उनके गार्ड हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है महाराजा की। जब वो लंदन गए थे, तब वो इन्हीं बर्तनों में पानी लेके गए थे। तो चलिए सुनिए इसके बारे में। किंग ऑफ जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड। I already told you, sir, don't be confusing names. Madho Singh first he was the big Maharaja. Madho Singh second, he was religious Maharaja. He took these vessels full with Ganges water in England. You know why? Sir, you know in Europe people eat beef. For Hindus, cow like mother. So when this king he went in England, he thought the British people will cook food for me in same kitchen where they cooking beef. So he wrote all these things from there.
He bring this water, these vessels full with Ganga water. He cook his food in Ganga water. He drink Ganga water. He take bath also in Ganga water. He stayed 2 months there. For 2 months he took 2 vessels, this one and that one. Both are recorded in Guinness Book of World Records because it's no joint here. This is single piece of silver. Bottom to top, no joint. Weight 345 kilos, height 5 foot and 3 inches and capacity 2000 liters. Sir, before 1947, the king of Jaipur, they have special currency was known as Jhad Sai. Jhad Sai means they have coins with a tree made of silver. So they are almost 40,000 silver coins, and they made one seat, and then they made one pot. So this is recorded in Guinness Book of World Records, largest single piece of silver in the world. Now from here we are going to see a very beautiful part of this palace, Sabha Nivas. This was private audience, private meeting hall. ये जब अनकही अनसुनाई बातें हम सुनते हैं और वहाँ पर जाके महसूस करते हैं ना, तो कुछ अलग ही फील हो जाता है। मुझे इंडिया के बारे में ना बहुत प्राउड फील हो रहा था, जो कि पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से उन्हें बनाया, और जो पानी भी यहाँ से लंदन तक लेके गए, वो बर्तन 2 महीनों के लिए जो महाराजा ने यूज़ किया था, और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि शायद मैं ज़िंदगी में अगली बार जाऊँ या ना जाऊँ। सो एक बार तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, बहुत बार कहने के बाद, सो थैंक्स टू हिम। जो हमारा ग्रुप था ना पनिकर, वो बहुत ही हेल्पफुल था और सभी बहुत ही इंटरेस्टेड थे, और ज़्यादातर जर्नलिस्ट थे हमारे साथ, कुछ पुलिस और उनकी फैमिलीज़ भी थी, कुछ लोग थे वो फोटोग्राफर्स थे, कुछ लोग थे वो यूट्यूबर्स थे केरला से। सिर्फ हम दोनों की कर्नाटक की फैमिली थी यहाँ पर, जो कि बहुत सभी लोग ना हर जगह बहुत ध्यान देकर सुनते थे, और सारे जो मोमेंट्स है वो कैप्चर करते थे, और सारे लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए थे। एन्जॉयमेंट अलग अलग तरह से भी ली जा सकती है। तो हमने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जाकर वहाँ की जो नॉलेज हमने गेन की और वहाँ का एक्सपीरियंस हमने किया, वो बहुत ही अच्छा रहा। Picture looks like old. Lily Pool. Actually, Lily Pool, there is a particular name. It was the residence of last queen of Jaipur, Maharani Gayatri Devi. It was near Birla Temple. That was Lily Pool of the. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ वहाँ की कारीगरी का भी हमें जानकारी वहाँ पर दी जा रही थी कि किस तरह राजस्थानी जयपुरी ब्लॉक प्रिंट्स वो लगाते हैं कपड़ों पर। मान सिंह, who was the army commander of Mughal Emperor Akbar. Lake built by Man Singh, palace built by 5th ruler of Jaipur city, Savai Pratap Singh. See right side, Jal Mahal. Wait, I will stop. जाने से पहले ना हर जगह की कुछ डिटेल्स आपको लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप टूर पर जाते हैं। तो मैंने भी कुछ वहाँ के बारे में कुछ कलेक्ट मैंने किया था इन्फॉर्मेशन। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जलमहल का। सोच रही थी कि करीब से जाके देखो, लकीली उन्होंने हमें एग्जैक्ट जलमहल के ऑपोजिट ही रात का होटल का जो स्टे है ना वहीं पर पनिकर्स ने दिया था। सो शाम के वक्त हम करीब से उसे जाके वहाँ पर देख के भी आ सके। सो थैंक्स टू पनिकर्स। Jal Mahal. So lake built by Man Singh, who was the army commander of Mughal Emperor Akbar. Artificial lake in Rajasthan, maximum artificial lake, no natural lake. So lake was known as Man Sagar. Olden time, when wild animals coming for drinking water, king will do the hunting. Jal Mahal, it was up to here, where you are standing, up to here. फाइनली हम जा रहे थे आमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस है जयपुर का, और ये इसका दूसरा एंट्रेंस है जो कि आपको दिख रहा है। पर हमें ना जो हमारा बस था ऊपर तक नहीं जा सकता था, तो इसीलिए नीचे से हमें जीप की डायरेक्शन में जाना था। तो जहाँ पर जीप्स वगैरह रुकते हैं ना, तो उन लोगों ने हमें और एक डायरेक्शन में हमें उतारा था।
यहाँ पर ना आपको कुछ एहतियात रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे जो चीज़ें वगैरह भेजने के लिए आते हैं ना, वो जब एक आता है तो उसके पीछे और 2-3 लोग साथ साथ में आते हैं, तो वहाँ पर कुछ एहतियात रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप फैमिली के साथ, जो कि आपका मोबाइल हो, पॉकेट हो, वो सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं। जब एक फोक आर्टिस्ट रावणा हथा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, जो कि सिर्फ हमने टीवी पर देखा था और गाना उनका सुना था, पर यहाँ पर खुद मैंने देखा ना, तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी बज रहा था, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत इमोशनल भी हो गई मैं। फाइनली बहुत चढ़ने के बाद हमने आमिर फोर्ट एंटर कर ही लिया। बस सबको ये पता था कि ये आमिर फोर्ट है, और सबकी ज़ुबान पर ना सिर्फ जोधाबाई का ही नाम था, और सभी एक्साइटेड थे कि जोधाबाई का रूम देखना। आमिर फोर्ट की स्थापना राजा एलन सिंह ने की थी, पर जो स्ट्रक्चर आपको अभी दिख रहा है ना, वो राजा मान सिंह ने बनाया था। सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस की विज़िट करने के बाद एक बात मुझे पता चली कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर हो, बहुत सालों उनमें लगते हैं, जो आखिर में वो उसका जो शेप देता है, उसी का नाम हिस्ट्री में लिया जाता है। पर उनमें मेहनत बहुत सालों की और बहुत राजाओं की लगती है। आमिर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन उसके आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर के लिए माना जाती है। राजा मान सिंह ने बनाई थी, और राजा जय सिंह पहले ने उसे एक्सपांड किया था 1600 में। आमिर पैलेस जो है ना, वो राजपूत के आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही सिंबॉलिक है। एक मुझे अच्छा लगा कि हर जगह जो भी मॉन्यूमेंट्स को हम एंटर कर रहे थे, बहुत ही हाई सिक्योरिटी थी और बहुत ही अच्छा चेकिंग भी हो रहा था, पर यहाँ पर वीडियो वगैरह लेना अलाउड था। यहाँ पर ना हमने भी कुछ हमारे मेमोरीज़ कैप्चर किए। पता है क्यों, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालती हैं, आप लैपटॉप में भी सेव कर सकती हैं, पर कहीं ना कहीं से तो डिलीट तो हो ही जाता है। पर जो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, शायद ये सब मैं फिर से नहीं जी पाऊँ, ये सारे मोमेंट्स जो बाकी लोग भी देखेंगे और मेरे हस्बैंड और बच्चों को भी ये याद रहेगा। इसीलिए मैं जो भी मेरे मेमोरीज थे ना, इकट्ठा करके यूट्यूब पर डालती हूँ। At the right time before this gate, public permitted up to here, public area. You know, all these color are frescoes paintings, 350 years old. All are vegetable colors. This fort completed by two Maharaja, Maharaja Man Singh and Mirza Raja Jai Singh. First, we are going to see Sheesh Mahal, which built by Maharaja Mirza Raja Jai Singh, and then we will go to see Man Singh Palace. So first, we are going to see Sheesh Mahal. Please come. ये जो गार्डन एरिया आपको दिख रहा है ना, इसे आराम बाग कहते हैं, जो कि आमिर फोर्ट के अंदर है। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, वो एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस है, जो कि आमिर फोर्ट के अंदर है, और उसका नाम है शीश महल या ग्लासेस का पैलेस, ग्लास पैलेस। इस महल में आपको मुग़ल आर्किटेक्चर और राजस्थानी आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन दिखने के लिए मिलेगा। जो हिंदी मूवी है मुग़ल आज़म, उसका जो आइकॉनिक सॉन्ग था, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो यहीं पर शूट हुआ था। Maharaja Mirza Raja Jai Singh have two wives, Chandravati and Chand Kaur. So he made two rooms. One is this one, next is there, and in the middle there is a small hall which is private meeting hall. Sir, you are watching this, looks like silver. This is not silver. This is the mirror glass, and all these glasses carried from Belgium glass. You know, in 16th century at the royal time, on every door they hang curtains,
On the floor they have same pattern carpets. And you know in night time how they decorate this palace. I will show something special to you. Come with me. ये जो सारे शीशे आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे बेल्जियम से उस वक्त उन लोगों ने मंगाए थे और यहाँ पर लगाए थे। और बहुत ही सुंदर सी हैंड पेंटिंग भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। उस वक्त की जो महारानियाँ थी ना, उन्हें शायद तारे और चंदा देखना बहुत पसंद था, तो उन्होंने परमिशन ली, पर उन्हें परमिशन नहीं मिली बाहर सोने के लिए। तो महाराजा ने उन लोगों के लिए एक शीश महल ही बना लिया, और जो हुक लगा के जो कैंडल लगाते थे उसके रिफ्लेक्शन से ना, जो उन कैंडल जब लाइटनिंग करते थे तो उसके रिफ्लेक्शन में उन्हें भी ये तारों की तरह शीशे चमकते थे। सो कुछ इस तरह से मुझे समझ में आया, और डिटेल तो मुझे नहीं पता है। सो शायद आगे जाके हमारे जो गाइड है ना, वो शायद बताएं। Move your hand like this. See the reflection of these lights there. Everybody please watch there the reflection of these lights. Sir, it's everywhere. It's everywhere. If you come this side, come here sir, come here, come here. Now you can see more better here. Come this side. Come here, come here. You can see more better here. ये जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। मोबाइल के लाइट से ही हमने तारे देख लिए थे। Now listen me. In 16th century, you know those days there was no electricity. Those days in 16th century they had oil lamp. So you know oil lamp you can try at your home. It's never stayed straight. If you breathing in the room it moves. If you walking in the room it moves. And that moving lamp, that is golden color. This moving lamp reflected in these glasses looks like stars are shining there. So you know king what if we with the blue moon, one moon there, one moon here. शीश महल। Now we're going to see Mansingh Palace, and before Mansingh Palace I will show you the royal toilet. ये राधा कृष्ण जी की टेम्पल की, जो कि महल के अंदर था, उसी की मैंने क्लिपिंग यहाँ पर ऐड की हुई है। अब ना हम रॉयल टॉयलेट देखने जा रहे थे, जो कि आमेर फोर्ट के अंदर था। जब हम लैट्रिन्स देखने जा रहे थे ना, तब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गुफा के अंदर कहीं हम गुम ही ना हो जाए, तो डर डर के ना पीछे पीछे सबके साथ साथ जा रहे थे। Please go ahead, please. लैट्रिन से ना एक उन्होंने इस तरह का, जो हमारा कॉरिडोर होता है ना, कुछ उसी तरह से उन्होंने एक जगह बनाई थी। वहाँ से ना सैफरन गार्डन दिख रहा था, बहुत ही सुंदर सा गार्डन था। चारों तरफ से ना दीवारों से घिरा हुआ जो लैट्रिन हम देख रहे थे ना, तो हमारा दम घुट रहा था। सो सभी लोग जाकर ना इमीडिएटली वापस भागकर आ जाते थे। वहाँ के लैट्रिन्स और बाथरूम देख के मुझे एक अच्छी याद आई, जो कि अब तक उन लोगों ने ना, जयपुरी लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने वो कंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू किया हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग जो है ना राजस्थान से आते हैं, और जो चूल्हे होते हैं ना, हमारे यहाँ तो असरा वाले कहते हैं, पता नहीं मुझे हिंदी में से क्या कहते हैं, जो कि एक साथ 3-4 कुकिंग भी हम कर सकते हैं, उसके साथ नहाने का पानी भी गर्म होता है। वो कंस्ट्रक्शन वो अभी लोग वहाँ से करते, तो शायद ये उस तरह का कंस्ट्रक्शन कुछ सिमिलर था। शायद उनकी वो कला होगी, उनका वो आर्किटेक्चर होगा, जो कि वो वहाँ से यहाँ लेकर आए और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी।
Mansingh. You know, Sismel belonged to Mirza Raja Jai Singh. Now we are Mansingh Palace. Maharaja Mansingh have 12 wives. Right? When he stay here in this palace, in winter season especially, when he take bath here, you know, this is bathtub of Mansingh. Here in this corner, this is system where they make the warm water. Then you know this one and that one, they're connecting each other as per pipe line. वीडियो तो चलता ही रहेगा, पर मैं आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी ज़िंदगी में मौका मिले ना तो इस तरह का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। पर आपको ना आपके हेल्थ की बहुत ही केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही चलना होता है। एक पैलेस ना एक छोटा सा शॉपिंग मॉल नहीं होता है, बहुत एकड़ लैंड में वो होता है। हम भी बहुत थक रहे थे, पर जब हमारे गाइड हमें गाइड कर रहे थे, बहुत सारी हिस्ट्री हमें बता रहे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। और हम उनके साथ You know, those days when king और they go for battle, they need support of different kings. So that's why they made more marriage relations. You know, Mansingh fight lot of battles because he was commander in chief of Akbar's army. He went, I told you, he went up to Kabul and Kandahar also. So he won lot of battles. That's why he got many wives. 12 legal wives, 100 co-wives. So for 12 wives, he made 12 rooms. 3 this side, 3 there, 3 here, and 100 rooms this side. Over there, 100 rooms. For all wives, he made this is meeting hall for the wife. This is meeting hall for all wives. Now I will show you the room of legal wife and co-wife. सभी लेडी जो वहाँ पर मौजूद थी ना, इस मीटिंग हॉल को देख के अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हमें भी एक मीटिंग हॉल बना के दो। Whole compartment, this outer area, this inner area, this whole compartment is one room for one legal wife. Okay, like this 12. You know, one is there, one is there. So like this, 12 rooms are here. And upstairs, and in that corner from here, this is the area for co-wives, concubines. 100 rooms. You know, here there are many missing way, many tunnels, but in this whole palace, when you are inside the rooms or somewhere in missing way, you will feel cool, almost 10 degree less temperature. Okay, so this is room for legal wife. Now we are going to see the room of co-wives. Come with me. But they also have very good ventilation systems. Now come inside the room of queen. सारे रूम्स की वीडियो मैंने नहीं ली है, पर एक जो रूम था जहाँ पर उन्होंने अभी हैंडलूम के लिए वहाँ पर एग्ज़िबिशन लगाया हुआ था, और बहुत सारे साड़ीज़, जयपुरी कुर्तीज़, वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें होती हैं ना, बांधनी, शॉल, वो सब वहाँ पर वो हमें दिखा रहे थे। और बहुत मुझे लगा कुछ रिजनेबल भी थे, पर मैंने नहीं लिया। मेमोरी के तौर पर कुछ एक ही जो बांधनी शॉल होता है वो मैं लेके आई। Arts of Jaipur in here. This is the Rajasthan government tenderized shop. Our prices is very incredible in here. This is 250 rupees. This is 250 rupees. Beautiful scarves. One we made on the sarees for tie and dye saree. 750. This is 750 tie and dye sari. This is Maharani sari. It's very famous of here on the city palace of the 18 kilo. She is wearing. Or just we make on copy on the block printings. For her sari, the real gold wire, real silver wire, on the pallus, the real gemstones. It is, you can get in your home like this. Don't require to the irons. This is a wrinkle free. 1500 rupees. And color are more available in here. You want to see the dress material? We have a dress material also. 1050. Chudidar. It's also chudidar 1650. थिंग्स तो हमने उतने परचेस नहीं किए, पर वहाँ की जो चाय थी ना, उसका मज़ा कुछ अलग ही था।
इन आर्टिस्ट को देखकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए और बहुत सॉन्ग्स की फरमाइश कर रहे थे जो कि वो नहीं गा पा रहे थे क्योंकि अब की यूथ हैं वो, उन्होंने शायद सोचा होगा वो फोक आर्टिस्ट। वो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। एक वीडियो एडिट करने में ना 3 से 4 घंटे लगते हैं, एक 30 मिनट्स का, और वो भी कुछ इस तरह का ट्रैवल व्लॉग हो तो बहुत ही टाइम लगता है। पर जब मैं ये सारी क्लिपिंग्स फिर से देख रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अच्छा किया वहाँ पर जाके। बहुत ही मुश्किल था मेरा जाना क्योंकि मेरी हेल्थ उतनी ठीक नहीं रहती है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ही सिर्फ जानते हैं कि मेरी हालत किस तरह थी जब मैं गई थी, और विद डॉक्टर के परमिशन में ही मैं गई थी। और मुझे डॉक्टर ने कहा था 1 मंडे जाओगे तो अगले मंडे आके मुझे रिपोर्ट करना है। सो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी थी, पर मुझे अच्छा लगा और भगवान का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे जो मेरी इच्छा थी वो उसने वो पूरी करी और मुझे ये सारा देखने का मुझे मौका मिला। आगे की जो एक छोटी सी क्लिपिंग है ना, वो मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगी। बस मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको इस तरह का कभी भी मौका मिले तो, या मौका आप घर के भी एक ना एक दिन ना, वो सारी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या भारत में ही ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि हमें नहीं पता है, हम नहीं गए। मैं बिना सिर्फ मुंबई गई थी एक बार, और वेलंकनी जो है हमारा होली प्लेस है, वहाँ पर हम जाते हैं, और बेंगलोर, और उससे ज़्यादा हमने बाहर और कोई स्टेट हम नहीं गए थे, क्योंकि पहली बार 4-5 स्टेट एक ही साथ हम देख कर आ गए थे जो भी कुछ प्लेसेस है। सो बहुत ही अच्छी मेमोरी रही है हमारी, और हमने बहुत एंजॉय किया। जो भी मेमोरीज है वो आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करी। और फाइनली ये ताजमहल के सामने का रूम ही हमें मिला था विंडो से, रात के वक्त का ना, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पर महल हमें दिख रहा था, मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। और जो भी अगली सीरीज़ थी जो कि थर्ड पार्ट है ना, वो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि फतेहपुर सिकरी और आगरा का था। वो ये पहला दिन था और वो दूसरा दिन था। गोल्डन ट्रायंगल पैकेज थी हमारी पानीकर के साथ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही रिजनेबल था। ये जो पैकेज थी ना 2 दिन की 4250 की थी पर हेड, और एक नाइट उसमें फ्री भी था। सिर्फ ब्रेकफास्ट और फूड का ही पेमेंट हमें देना था। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से आपसे कह रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो ज़रूर देखना पूरा वीडियो। एंटरटेनमेंट तो नहीं है इसमें बिल्कुल ही, पर इंफॉर्मेटिव तो होगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी जो कि आपको नहीं पता होगी। सो होप you like the video. Thanks for watching. Thank you. Take care. Bye bye. See you soon with another vlog. तब तक के लिए bye bye.